So this was like the third friendship breakup that I had. Classmates में से किसी ने बहुत respectfully बात कर लिया. She used to come back home. खड़ा के फिर हम लोग को GC में text करती थी. I think this guy likes me. You should have said at least once. It's like a very big thing. 70,000 का difference is like a very big. Hi, welcome back to Storytime Saturday. This is your host Ragini. Okay, so for this story time, I have a crazy tea to share. I mean, I have had 3 friendship breakups till now, and this was like the craziest of all of them. And this is very recent. Like, I broke my friendship with this girl in the month of June itself, like on the 1st of June. Crazy start to the month. And yeah, like after that, we haven't been talking. Like, and I have blocked her from everywhere, like from Insta, WhatsApp, all of the platforms that I use. So yeah, so what happened was, so I would like to take you back to starts to how I know her. So I have been studying in a girls' convent school since class KG. Class KG to class 10. Then I changed my school again to a convent, but a co-ed convent. So I know this girl since class 9. I mean, we became kind of friends since then. And yeah, I mean, I was not that close to her back then because I had my own friend group, like with whom I used to spend most of my time. So I definitely did not give her that much attention, and I did not know her that well also. After that, cut to class 11 when I changed my school. She also changed her school and she came to that same school. Okay. So in the school now, I only know her and she only knows me. So that's how we became friends. Like we used to stay together, we used to sit together, like we did everything together, and like somehow we became very close. And then I started to see her, like her real side. Okay, by God, she's so pick me. Like, oh my God, like as soon as she meets a boy, her entire personality changes. Like, she is sweet, she's cute, she's like, her voice will change, her everything changes. Okay, and I was like, bro, I didn't know this side of you. And then somehow I had to stick by her because I have no one. I mean, it will sound selfish, but you know, if you have been through, like, you go to a new school, you don't know any people out there, and you just know one girl, and if you let her go, then you'll be like alone. Right. So I had no one to talk to, and I just had her. So I mean, it's like, let's try fixing it, man. I mean, she did not hurt me that much at the beginning. Next, let's move on to like 11th ka middle ka phase. Okay, like in the month of September, October. So now we made new friends, like she also and me also. Uh, One female friend who was from different school, she became our friends. Like, we became really good friends, and 2 guy friends. Okay, so these 2 guy friends, one of, like, she liked one of these guy friends. Okay, like crush kind of a thing, and the kind of things she did after that. I mean, no. So what she used to do, she used to go to them and talk about me, that I am spreading shit about them. I am talking behind their back, like this kind of things. And I was like, I did not know at first. फिर बाद में जब मेरे को पता चला, and I was like, yes. So she used to do this like constantly. She has done like 4 times till now, like 4 freaking times. Okay, so the last time, like the last and the final point when I decided that I need to let this person go out of my life was like in the month of May. Okay, like in the month of May. So what she did was, after our 12th, so like after our 12th results were out, we usually go to meet our teachers. Okay, because like we thank them, we greet them, like that kind of a like ritual is there. So she decided that let's go and like meet our teachers, and will you go? She asked me. So our results were out in the month of May, on 13th of May, CBSE results, and she asked me if I will go the next day. I said that yeah, I can go, but like who else are going? Like, I asked her that who else are going. So she was like, these friends of ours are going. Let me ask them. I was like, okay, फिर पूछ लो. And then उसने पूछा, ठीक है. She called this one of the guy friends, and उसने मतलब कॉल में, like how we say, like sometimes if we are frustrated, अगर हम लोग थोड़ा गुस्सा आता है किसी बात पे, like we are, our mood is off, तो होता है ना कि अगर कॉन्स्टेंटली कोई तुम्हें बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक, तो हम बोल देते हैं छोड़ो ना यार, ऐसा टाइप करे. सो शी वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग माय नेम दैट लाइक शैल आई आस्क रागिनी, शैल आई आस्क रागिनी, ऐसा ऐसा करके वो पूछ रही थी. तो वो उस फ्रेंड को, मेरा जो फ्रेंड था, ही काइंड ऑफ गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड वाज लाइक कि अभी उसको छोड़ो, ऐसा करके उसने बोला, ठीक है. एंड शी मेड सच अ बिग सीन ऑफ दैट.
So she, me, and one of our female friends, we three are like, we were like very close, and we had a GC also together. So उस GC में उसने text किया कि bro, do you know what he said about it? I was like, what did he say? So फिर वो पूरा ऐसे rant करने लगी कि उसने ऐसा बोला पता जब मैं तेरे बारे में बोल रही थी. And I was like, yeah, it's fine. I mean, I get it. Even I do that at times. Like, maybe he was frustrated, okay? And उसने मेरे को नहीं बोला कि ये बात कॉल पे हुई थी. She said, उसने मेरे को बोला कि he texted her saying कि अभी रागिनी को छोड़ दो ऐसा करके, ठीक है? तो उस बात में मेरे को भी थोड़ा, I felt a bit like ऐसा क्यों बोला उसने? Because text is something intentional. कॉल पे बात में you can say I understand. तो इसीलिए उसने बात को पलट दिया. She did not even mention about phone call. She said कि text पे उसने ऐसा बोला. So I was also kind of, I got like angry and all, and I ignored that guy for a really long time. Okay, like I was not talking to him at all. तो उसके बाद after like few days, another incident happened with the same girl. For like we were applying for a university, Mumbai University, and she did something so crazy, and that was the moment actually I stopped talking to her. And उसके बाद मुझे ये वाला incident पता चला about this guy. तो उसके कुछ दिन बाद we were planning कि let's hang out because the same guy जिसके बारे में वो बोल रही थी, he was leaving for Bangalore. So he said कि let's meet and let's hang out for like one last time. I was like okay fine. तो फिर उस टाइम पे मैं इस लड़की से बात नहीं करती बिकॉज ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी थी. तो फिर आई आस्क्ड हिम कि वो लड़की भी आ रही है क्या. तो उसने बोला हाँ आई थॉट ऑफ कॉलिंग हर. तो फिर उस बात पे दैट ओल्ड कन्वर्सेशन अबाउट द नॉट फेलिसिटेशन, वो जो हुआ था छोड़ दो वाला थिंग, वो आ गया, ठीक है, कन्वर्सेशन के बीच में. एंड देन ही टोल्ड मी कि ही आस्क्ड मी एक्चुअली कि भाई तुम क्या मेरे से लाइक आर यू एंग्री विद मी. एंड आई वाज लाइक नो आई एम नॉट, बिकॉज उस टाइम तक मैं भूल चुकी थी वो बात. लाइक इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई फॉरगॉट ऑलमोस्ट. तो वो मेरे को पूछ रहा है कि भाई आर यू एंग्री विद मी. आई सेड नो, व्हाई विल आई बी. एंड ही वाज लाइक कि अबाउट दिस थिंग आर यू एंग्री विद मी. आई वाज लाइक oh, this was not a big deal, I said. And he was like कि no, this girl, just imagine, इस लड़की ने मेरे से वो जीसी में उसने पूरा बात ऐसे उल्टा तरीके से फैलाया, ठीक है. उसके बाद आई डिड नॉट इवन रिएक्ट हार्शली, आई डिड नॉट इवन से अ बैड वर्ड अबाउट हिम. आई सेड कि छोड़ो, अब उसने कैजुअली बोला होगा, जस्ट लीव इट, इट्स नॉट अ बिग डील, आई डोंट माइंड. मैंने ऐसा बोला. तो वो बात उसने वैसे ना बोल के उस लड़की को बोला कि डू यू नो रागिनी सो एंग्री विथ यू, तो मैं ऐसा बोला उसके बारे में, वो उसको बहुत बुरा लगा. And then this guy asks me that why are you angry about such a small thing? I was like, no, I'm not angry, bro. Like, why will I be angry? It's such a small thing. It's such a like such a silly thing to be like angry about. And I was like, वो ऐसा क्यों करती है? Like, why does she do this? And this was the fourth time she did this. Okay, इसके पहले भी उसने बहुत बार किया. Like, if I have to say then बहुत लंबा story time हो जाएगा, but let's avoid that. तो ये वो बहुत टाइम से करती आ रही है. Like, constantly she's been doing, and only with guys. Like, she does not, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ द कंक्लूजन इज राइट, बट उसके पैटर्न के हिसाब से आई हैव मेड अ कंक्लूजन कि मे बी शी डज नॉट लाइक मी बीइंग फ्रेंड्स विद गाइज और द गाइज विद हुम शी इज फ्रेंड्स विद. तो ऐसा लगा वो करना चाहती थी, ठीक है. तो आई वाज रियली शॉक्ड, मतलब भाई बंदा इतना नीचे कैसे गिर सकता है. ना तो उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आया कि भाई लाइक व्हाई शी डूइंग लाइक दिस. मतलब उल्टा क्यों बोल रही है? जो है वो बोलो ना भाई, जो है जो रियल है वो बोलो. देन नोबडी विल इवन लाइक नो. चीज़ें ख़राब क्यों करती है मुझे वो नहीं पता उस वो लोगों के बीच में, बट नेवर माइंड. सो या उसके बाद आई वाज आल्सो लाइक कि भाई लाइक व्हाई शी इवन डूइंग दिस, लाइक दिस इज समथिंग सो क्रेजी. लाइक आई डोंट नो लाइक व्हाट शी यूज्ड टू गेट आउट ऑफ दिस. मतलब शी वाज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको हर किसी के साथ अच्छा होना होता है. शी वांट टू बी गुड विद एवरीवन, बट मतलब वो गुड होने का तरीका इज़ लाइक शिटी. नेवर माइंड. तो वो ऐसा कर रही थी. नाउ आई लाइक काइंड ऑफ आई कनेक्टेड द डॉट्स, आई टॉक विद माय फ्रेंड्स. मुझे दूसरी मेरी फीमेल फ्रेंड थी, वो उसने भी बताया कि भाई यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. तो हमने जब कनेक्ट किया तो वी गॉट टू नो कि भाई शी हैज़ बीन डूइंग दिस इंटेंशनली काइंड ऑफ. तो या दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि आई एम सो डन विद हर. सो फिर मैंने उस लड़की को बोला कि लेट्स डू द हैंग आउट, लेट्स प्लान द हैंग आउट. वी विल इन्वाइट हर, आई मीन यू विल इन्वाइट हर, एंड उसमें हम उसको कन्फर्म करेंगे. वी विल आस्क कर कि उसने ऐसा क्यों किया, लाइक ऑल ऑफ द फॉलो अप क्वेश्चन. सो या उसके बाद वी लाइक वी वेंट ऑन द हैंग आउट. ओके, तो हम हैंग आउट पे गए. We went to this cafe, and by that time I was not talking to her. Like I completely stopped talking to her from like हम लोग हैंग आउट पे गए थे 1 जून को, तो अराउंड 28 मई के आसपास से आई स्टॉप टॉकिंग टू हर बिकॉज ऑफ दैट मुंबई यूनिवर्सिटी थिंग. उसके बाद ये वाला सीन हुआ तो आई वाज लाइक आई हैव टू कम्प्लीटली कट हर ऑफ. तो उसने रियलाइज़ कर लिया था कि समथिंग इज रॉन्ग एंड समथिंग इज नॉट हैपनिंग. तो आई कम्प्लीटली अवॉइडेड.
completely avoided talking to her. उसके बाद वो आई वो कैफ़े पे, लाइक आई रीच्ड बिफोर हर एंड ऑल्सो लाइक दिस टू गाय फ्रेंड्स, तो हम तीनों साथ में गए थे, तो वी रीच्ड देयर फर्स्ट एंड शी केम एंड शी सेड देयर एंड आई वाज नॉट इवन लुकिंग एट हर फेस. आई मीन इट वाज क्रेजी बट आई एम लाइक दैट, लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम कि मेरे को अगर कोई एक बार अगर मैंने किसी को कट ऑफ कर लिया देन आई एम लाइक आई एम नेवर गोइंग बैक टू द सेम पर्सन अगेन. सो आई थिंक आई डोंट नो इट्स अ गुड हैबिट बैड हैबिट व्हाटएवर बट आई जस्ट कैन नॉट डू इट. तो या आई मीन आई कंप्लीटली अवॉइडेड टॉकिंग टू हर. फिर वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, ठीक है, लाइक आई वाज आल्सो बिहेविंग नॉर्मल, शी वाज आल्सो बिहेविंग नॉर्मल, लाइक देयर वाज नथिंग वेरी सीरियस और लाइक ऐसा वियर्ड कुछ नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली बीच में थोड़ा लाइक सीन्स ऑकवर्ड हो रहे थे बिकॉज नोबडी वाज टॉकिंग, और सडनली वो लोग साइलेंट हो जाते हैं, फिर थोड़ा हंसी भी आ जाती थी मेरे को, तो इट वाज क्रेजी होते. उसके बाद वी लाइक मी, there's another female friend and these two guy friends, like four of us, we created a group and the group's name was on this girl, like her, suppose her name is Ria, I can't say the real name, suppose her name is Ria and it was like anti Ria, तो लाइक वी शुड हैव चेंज द नेम, बट समहाउ वो नेम ने ही हमारा मेन काम जो किया ना कट ऑफ करने का, बिकॉज even after like we confronted her she was not ready to give up, like she was like explaining herself but I was not going back, like bro whatever you do you, तुम मेरे पैर पे गिर जाओ, तुम मेरे को मतलब जो भी करो I am not getting back. So like that name kind of helped. Okay, so हमने वो जीसी का नाम चेंज नहीं किया, तो while we were sitting on the cafe, me and like she and that other female friend, we went to the ladies toilet and they were clicking few pictures. तो उसने उस लड़की ने लाइक लेट्स रिया ओनली लेट्स से, तो रिया ने एक नया फ़ोन खरीदा है, इट्स लाइक अ वेरी गुड कैमरा, सो शी इज़ लाइक कि व्हाई नॉट आई ब्रिंग माय फ़ोन एंड लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स. देन जो मेरी दूसरी, मैं तो बात नहीं करी थी, दूसरी जो फीमेल फ्रेंड थी उसने बोला हाँ ठीक है चल लेके, तो वो जब गई फ़ोन लेने तो टेबल में उस दो का फ्रेंड्स जो लड़के थे उनमें से एक का फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक सेम जी हम लोग का जीसी का भी एक नोटिफिकेशन था एंड शी अपेरेंटली सॉ द जीसीज नेम. मतलब ऑब्वियसली अपना नाम दिखेगा तो लाइक if someone sees their own name like on a screen अपने आप attention चला जाता है, so she saw that name and obviously but just see the kind of mindset she has. उसको तुरंत यू नो अगर मेरे को ऐसा कुछ पता चलेगा कि किसी ने मेरे खिलाफ एक ग्रुप बना लिया है like the people has to call friends, I would have immediately left that place and I would have never talked to these people, but उसने वो नहीं किया. I mean, after that cafe, we went to another cafe because for desserts. So वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, तो उसके बाद for desserts we went to another cafe. She walked with us happily, laughing, joking, normally बात करके वो उस कैफे तक भी पहुँच गई हमारे साथ, ठीक है. And bro, when she said कि उसने उसी कैफे पे ये चीज़ देख ली थी, I was like bro, I mean don't you have some self respect कि तुमको तभी पता चला but you waited till now, like why? When you wanted to taste the desserts, it's fine. You could have told. Sorry. तो मतलब yeah, it was like so funny. I mean, I don't know like what to say. तो उसके बाद yeah, I mean she did that and I was like, it's so crazy. Like bro, you don't have order at all. फिर उसके बाद वो उस कैफे तक भी पहुँच गई, ठीक है, हमारे साथ. Then तो उस कैफे तक भी वो पहुँच गई हमारे साथ एंड शी वॉज एक्टिंग ऑल नॉर्मल. ओके, फिर हमने डेजर्ट्स भी ऑर्डर करे, हमने सब कुछ किया, हम लोग चिल कर रहे थे. आई वाज टॉकिंग टू ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हर. तो हम लोग चिल कर रहे थे, फिर सडनली वो जो लड़के थे उनमें से एक को बोला कि आई वांट टू कन्फ्रंट रागिनी. वो शी वांट मतलब मेनली मैं ही थी लाइक मेन कैरेक्टर एंड शी वाज द विलन. तो मतलब उसको मेरे को ही मेनली कन्फ्रंट करना था बिकॉज आई वाज द वन हु वाज लाइक सीरियसली इग्नोरिंग हर. आई वाज नॉट एट ऑल टॉकिंग टू हर. बाकी लोग लाइक काइंड ऑफ टॉक मतलब बात कर रहे थे, यू नो. I don't know how they did, but they did. So she did not feel like much ignored by them as much as she felt by me. So she wanted to mainly confront me. So I was like, okay, fine. जो बोलना बोलो. So I went and I sat there, the same table. Like it was like a ऐसा टाइप का टेबल था and we sat like this. Okay. So I sat in this corner, she sat in this corner. बीच में तीन लोग. तो शी स्टार्टेड कि लाइक व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड ऑल, मतलब व्हाई डिड इट स्टार्ट. उसके बाद वो जो लड़का था जिसके साथ उसने मेरा उसका फ्रेंडशिप तोड़ने की कोशिश की, ही स्टार्टेड टॉकिंग कि भाई व्हाई डिड यू से थिंग्स लाइक दिस, दिस वाज नॉट हाउ इट वाज. तुमने पूरा सीन चेंज कर दिया, तुमने जो हुआ नहीं उसको बोला एंड देन लाइक व्हाई यू आर मेकिंग अप थिंग्स. तो शी वाज लाइक उसने फिर एग्री भी किया, हाँ हाँ आई डिड एंड आई एम सॉरी, आई शुड हैव डन दिस, आई एम वेरी सॉरी. मतलब ब्रो लाइक आर you are a 12th grader. I mean, you just passed 12. You'll be entering college and you are working with such disgusting personality, like literally. तो yeah, I mean उसके बाद she agreed कि she was doing this. I mean उसके बाद मैंने कुछ बोला भी नहीं, मेरे को जो हंसी आया ब्रो, I was like ये टेबल था, मैंने ऐसे करके
फुल ऑन हंसी जा रही और मैं ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर वो जीसी में टेक्स्ट करी, ब्रो ये जाती क्यों नहीं, ब्रो ये जाती क्यों नहीं। उसके बाद शी वाज टॉकिंग नॉर्मल। फिर सडनली उसने एक बात छेड़ी कि उसके पहले बाय द वे जो मेरी फीमेल फ्रेंड थी, शी टेक्स्टेड मी, ओके, लाइक बिकॉज़ वो जोर से नहीं बोल पाती बिकॉज़ शी वाज़ सिटिंग देयर। सो उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि आई थिंक शी सॉ द ग्रुप्स नेम। आई वाज़ लाइक सीरियसली देन हाउ डू। तो वो बोली कि नहीं, आई फील योर गट फीलिंग आ रहा है लाइक बाय सीइंग हर एटीट्यूड। तो मैंने ऐसा क्या एटीट्यूड दिखा है उसने कि बिकॉज़ जब हम उस कैफ़े से इस कैफ़े हम लोग चल के आए थे, ओके, एंड उस टाइम पे दिस गर्ल रिया शी वाज़ टॉकिंग टू दिस फीमेल फ्रेंड ओनली बिकॉज़ मैं तो बात नहीं कर रही थी, जो 2 लड़के थे दे वर टॉकिंग इन देमसेल्व्स, तो ये उससे बात कर रही थी। तो उस बात में उसने ऐसा कुछ बोला जिसकी वज़ह से इस लड़की को फ़ील हुआ कि उसने शायद ग्रुप का नाम देख लिया। तो मैंने बोला अच्छा तुमने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी उसने देख लिया। तो फिर शी लिटरली सेड कि आई सॉ समथिंग रियली स्ट्रेंज एंड आई कांट बिलीव माय आईज़ एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी लाइक दिस। ऐसा-ऐसा करके उसने बोला कि ग्रुप का नाम काफ़ी अच्छा है, एंटी रिया। एंड भाई मेरे को जो हँसी आ रहा है, आई वाज़ लाइक आई जस्ट लुक्ड एट माय फीमेल फ्रेंड, आई वाज़ लाइक हाउ डू यू इवन नो इट? एंड फिर मैं वापस से पीपल के नीचे हाथ करके आया एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। आई क्रेज़ीली लाफ्ड लाइक इन फ्रंट ऑफ हर। वो मेरे को देख रही है हँसते हुए, मैं हँसी जा रही। And she was like, I don't work, I will just leave this place right now. I'll not continue here. I am going home. I will just end that. और ऐसा बोल के वो बैठी है। द रीज़न में उसका उबर बुक नहीं हुआ। मतलब भाई किसी का कोई अपना ऑरा इतना डाउन कैसे कर सकता है? लाइक ब्रो, अगर तुम्हारा ऑटो उबर जो भी है तुमने बुक किया वो आया नहीं तो यू गो आउटसाइड, स्टैंड वेट देयर, लाइक यू सेड जस्ट नाउ कि मैं मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना, आई एम जस्ट लीविंग, तो यू लीव ना ब्रो, लाइक यू शुड हैव सम ऑरा। एंड इतना बड़ा बात, इतना लाइक इतनी बड़ी बात उसको पता चला कि हमने उसके खिलाफ एक ग्रुप बना लिया है। It was such a big thing. I would have just left and like I would have shouted at those people. But she was like, she was chill and she was like कि मैं ऑटो नहीं आया, मैं उबर नहीं आया, like I think she booked a Rapido or something. मेरा Rapido ऑटो नहीं आया है, तो I'll be waiting and then I'll as soon as it comes I'll leave. मेरे को जो हंसी आया उसमें से एक लड़का था, he was laughing as like hell। तो उसने क्या किया, फिर वो वॉशरूम चला गया, ठीक है, वॉशरूम जाके वो ग्रुप पे टेक्स्ट करा, ब्रो वो गया क्या, ब्रो वो गया क्या, आई पिक दैट आउट ऑफ हियर। फिर वो फ्लश के जा रहे थे जिसका हंसी सुनाना था बिकॉज़ द वॉशरूम वाज लाइक नियर इन हियर, लाइक वेयर वी वर सिटिंग। हाँ, इतना क्रेजी एक्सपीरियंस। एंड देन शी लेफ्ट एंड शी वाज लाइक, उसने उठ के वो जो लड़का बैंगलोर जा रहा था उसको बोला कि ब्रो अच्छे से जाना, इफ़ यू नीड मी आई एम हियर। फिर लड़के ने कोई जवाब देकर फिर चला गया, चली गई साइड। आई मीन डूड, क्रेजी एक्सपीरियंस, लिटरली क्रेजी एक्सपीरियंस। उसके बाद जो उसने किया दैट वाज इवन मोर क्रेजी, ओके। सो व्हाट शी डिड वाज, तो हमारा फ्रेंडशिप हमने ऑफिशियली तोड़ दिया, ठीक है, एंड लाइक वी वर नॉट इन लाइक टॉकिंग टर्म्स एनीमोर। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी। तो उसके बाद उसका एक फ्रेंड था हम लोग का सेम स्कूल से, हु वाज आल्सो आवर फ्रेंड एंड शी वाज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, वी वर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। सो उसने फिर बताया, मतलब उसने उस लड़की को मैसेज किया बहुत, मतलब जिस दिन से हम लोग का फ्रेंडशिप टूट गया, शी हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू दिस गर्ल। तो उस लड़की को थोड़ा वियर्ड फील हुआ कि अचानक से मेरे से इतना बात क्यों कर रही है, बिकॉज इन जनरल जब हम लोग नॉर्मल थे तो वो बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं करती थी उस लड़की को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब लाइक जब उसको अचानक से याद आता था तभी, ठीक है। सो लाइक वो लड़की भी थोड़ा सा वियर्ड फील कर रही थी, अचानक से इतना बात क्यों करने लगी मेरे से, ऐसा टाइप का। तो इट वॉज ओके। देन शी सेड टू दिस गर्ल, रिया सेड टू दिस गर्ल कि ब्रो डू यू नो रागिनी ने मेरे को पहले बहुत बार मैनिपुलेट किया टू बी नॉट फ्रेंड्स विद यू। Bruh. I was like, bro, why will I do that? You be friends with anyone. I have nothing to say. वो मेरी भी friend है, like why will I do that? And मेरा जो दिमाग फटा है ना, गॉट टू नो अबाउट दिस। सो दिस, फिर वो लड़की का भी दिमाग फट गया कि बिकॉज शी नोज मी व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम। फिर उसने बोला कि आई यू सीरियस, एंड वो भी ऐसे बात पे बात फैलाई जाएगी। शी वांटेड टू फ्रेम मी लाइक अ विलन, लाइक कंप्लीटली, मतलब मेरे को उसका यही मोटिव था कि मेरा जितना भी फ्रेंड्स है they should leave from my life. But she ended up losing 5 friends, 5, mind you, 5 all together at the same time. Crazy record. तो यार उसके बाद उसने ऐसा बोला उसको, ठीक है, तो वो लड़की ने उसको बोला कि ब्रो गिव मी सम टाइम, आई नीड स्पेस। तो उसने ऐसे स्पेस मांगा और फिर उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि ब्रो आई नीड टू टॉक टू यू। उसने कैसे, फिर मेरे को लगा कि शी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई आई ब्रोक माय फ्रेंडशिप विद हर, शी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, तो आई वाज रेडी फॉर इट, ओके। बट शी सेड मी कि डू यू नो व्हाट रिया सेड टू मी, क्या बोला, देन शी सेड, मेरे समझा, शी सेड कि यू मैनिपुलेटेड हर टू बी नॉट फ्रेंड्स विद मी। I was like, bro, ये conversation हुई थी, but she was the one who started the conversation. So it was in the time of our picnic, school picnic के time पे, December के month पे, when we went to the picnic,
उस जगह पे लाइक स्टेयर्स थे एंड शी फेल ऑफ फ्रॉम द स्टेयर। उस टाइम पे मैं थी उसके साथ और जो हमारी फीमेल फ्रेंड है जिसके साथ हमारा जीसी था, लाइक वी वर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, तो हम लोग साथ में ही थे। बट दिस गर्ल इज फ्रॉम साइंस, तो उसको अपने क्लास के साथ रहना था, शी वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो उस वजह से बता भी नहीं था कि वो सीढ़ी से गिर गई, ऐसा कुछ हुआ। बाद में रिया ने खुद ही उसको बताया, मतलब द काइंड ऑफ अटेंशन शी नीड्स। आई मीन उसके बाद रिया ने खुद उसको बताया कि आई आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, लाइक ऐसा ऐसा। तो वो लड़की ने नॉर्मल जवाब दिया कि हाँ ये ओके, ऐसा ऐसा करके। उसके बाद उसने टेक्स्ट नहीं किया, लाइक शी वांटेड, रिया को ऐसा लगा था कि उसको मतलब रात को भी टेक्स्ट करना चाहिए था, नेक्स्ट डे भी करना चाहिए था कि तुम कैसा हो, तुम्हारा पैर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो उसने नहीं किया, तो उसको वो ऑफेंड हो गई, बिकॉज उसको अटेंशन नहीं मिला, तो वो ऑफेंड हो गई और उसने बोलना स्टार्ट किया मैजिसी में कि भाई ये लड़की कैसी है, ये तो मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखती, मैं कैरी नहीं करती, अपने साइंस के दोस्तों के साथ ही रहती है। तो मैंने बोला था कि भाई इट्स फाइन, लाइक यू डोंट हैव टू बी दिस, लाइक यू डोंट हैव टू बिच अबाउट हर लाइक दिस, ओके। बट वो उसने वो पूरा कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और अभी जस्ट बिकॉज शी वांट्स कि उसका फ्रेंडशिप मेरे साथ ना रहे, उसने बात चेंज कर दी। उसने ऐसा बोला कि मैंने उसको मैनिपुलेट किया एंड आई वाज लाइक, मैंने उसको एक ही बार बोली ब्रो आई विश आई हैड द चैट्स, बट मैंने वो ग्रुप एक्सेप्ट मार दिया जस्ट डे, लाइक जिस दिन हम लोग का फ्रेंडशिप टूट गया आई एग्जिटेड दैट ग्रुप, आई डिलीटेड द ग्रुप। मेरे पास कोई चैट्स नहीं है तुमको दिखाने के लिए, बट आई विश आई हैड, शी वाज द वन हू स्टार्टेड दैट एंटायर कन्वर्सेशन, आई हैड लेजिट प्रूफ्स एज इन किस किस बात पे उसने उसको ब्लेम किया था। और एक बात था जो एम से रिलेटेड था, तो एम में उसको डीजे पार्टी में जाना था रिया को, बट एंड दिस गर्ल वाज इन द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, तो उसको फ्री पासेस मिले थे। एंड डिपार्टमेंट में अगर तुम होते हो एम में तो तुमको फ्री पासेस मिलते हैं, बट तुम दूसरों को फ्री पासेस नहीं दे सकते, देयर इज नो सच रूल। यू आर पार्ट ऑफ द कमिटी, दैट्स व्हाई यू गेट द फ्री पास, इट्स लाइक अ प्रिविलेज बिकॉज यू वर्क फॉर द इवेंट। बट दूसरों को क्यों फ्री पास देगा? तो शी वाज लाइक, रिया वाज लाइक कि भाई शी इज इन द लॉजिस्टिक्स टीम, सो शी कैन गिव मी अ फ्री पास, व्हाई नॉट, लाइक ब्रो शी कैन नॉट, बिकॉज एक तो वो सिर्फ एक मेंबर है, शी इज नॉट द हेड ऑफ द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इवन द हेड जो था वो भी हम लोग का फ्रेंड ही था, वो भी नहीं दे पाया हमको फ्री पास, तो ये कहाँ से देगी? मैंने उसको समझाया था, बट शी वाज लाइक कि शी वाज कॉन्स्टेंटली बिचिंग अबाउट इट। तो ये सब बातें मैंने उसको बोल दिया कि भाई शी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स अबाउट यू, जस्ट इमेजिन कितना मतलब नीचा वाला, क्या बोलूँ मैं यार, मतलब द काइंड ऑफ मेंटालिटी शी हैज इज लाइक वियर्ड, लगता है क्लास 2-3 के बच्चे भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। बट एनीवेज आई मीन उसके बाद लाइक शी, तो मैंने सारी बातें उसको बताया, तो शी टोल्ड मी कि ओके नाउ आई नो व्हाट आई नीड टू डू। तो मैंने आई काइंड ऑफ गॉट द आइडिया कि शी वांट्स टू बी ब्रेकिंग हर फ्रेंडशिप विद हर फॉर श्योर, बिकॉज मतलब आई टोल्ड हर कि भाई उसने क्या क्या बोला सब कुछ, शी काइंड ऑफ बिलीव मी बिकॉज शी नोज हाउ आई एम एंड हाउ शी इज। बिकॉज उसके साथ भी पहले बहुत इंसिडेंट्स हुए थे उस लड़की के साथ, रिया के साथ। उसने पहले भी उसके साथ भी ऐसा बहुत बार किया है कि ब्लेम किया, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी करती थी कि मतलब ये वो टाइप्स का। Yeah, उसके बाद she confronted and she said really bad things, like really bad things again, and then उसने भी friendship तोड़ दिया उसके साथ। Clocking out, I mean it's crazy। फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने उसको अनब्लॉक किया इंस्टाग्राम पे और फिर मैंने उसको एक टेक्स्ट भेजा, ठीक है, बहुत sarcastic वाला कि ब्रो you have done a great job. I mean it's like a very big deal to lose 5 friends at the same time within a span of a week. I mean it's like a very big deal। I mean ऐसा किसी ने जल्दी अचीव नहीं किया होगा। मैंने उसको एडवाइस भी दिया कि तुम भी कॉलेज जाओ या जहाँ भी जाओगे, आई जस्ट hope कि you undertake your lesson and you change yourself, because college में friends बनाना is a very big thing। On top of that if you have such a personality, not happening। फिर मैंने उसको एक बहुत अच्छी एडवाइस भी दी कि नॉट एडवाइस, मैंने उसको बहुत अच्छा डायलॉग भी दिया कि आई होप you never find true friends, because to find one you have to be one at first, which you are not। बहुत मज़ा आया। So yeah, I mean moral of the story is please be aware of such pygmy girls। I mean pygmy भी कम, like will be a very small word for the kind of things she did। मतलब this is like generalized करके मैंने बोला, पूरे साल उसने क्या किया, ठीक है। And she had a crush, she has crush on every other guy, and crush is a different thing, having a crush is okay, but वो क्या बोलती थी पता है कि अगर किसी लड़के ने इसके साथ रिस्पेक्टफुली बात कर लिया, ठीक है, मतलब 9 क्लास के क्लासमेट्स में से किसी ने बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर लिया, तो शी यूज्ड टू कम बैक होम, घर आके फिर हम लोग को जीसी में टेक्स्ट करती थी, आई थिंक दिस गाय लाइक्स मी। I was like bro you, मतलब delusional would be like a very small word for what you are। मतलब वो आई डोंट नो, मतलब अगर तुम्हारे साथ कोई रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है इट मीन्स कि दैट गाय लाइक्स यू। अगर डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा तो व्हाट विल यू से? आई मीन दिस इज सो बेसिक, दिस इज सो bare minimum। I don't know, I don't have words to describe this girl। I mean I don't know what she is। Okay, so yeah, let's come to the Mumbai University thing। Okay, वो भी crazy, मतलब this was the part where I realized कि see तुम्हारे
फ्रेंडशिप में कितना भी प्रॉब्लम हो, you don't like a person, even when you are enemy with someone, if it's related to education and as in something so important as education, then I don't think enmity, jealousy, ये सब चीज़ें बीच में आनी चाहिए, because this is something related to someone's future and you can't play with that, right? So what happened was, we all appeared for CVT, okay, and she also appeared also, and this another female friend, so we three were like very close, as I said. So हम तीनों जो भी करते थे बहुत डिस्कस वगैरह करके करते थे. तो we three decided कि हम CVT को देंगे, but we were not very sure कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा नहीं मिलेगा. Even now results are not out, so we are not very sure. So we decided कि हम थोड़े अच्छे जो नॉन CVT कॉलेजेस हैं उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे जो विद इन बजट भी हो, बिकॉज like we didn't want to go for like very expensive colleges, private colleges also. हमको गवर्नमेंट में ही जाना था, either government or autonomous colleges. So we saw this college called Saint Xavier's in Mumbai, which is a very good college. So we were interested in that, and also they have a branch in Kolkata. So we were also seeing for that. The Kolkata wala ke liye we were not eligible because we three were going for economics honors, and Kolkata Xavier's में you need 4 maths in your class 12 boards for to be eligible for economics honors. So we did not have 4 maths, we had applied maths. So we were not basically eligible. So हमको कोई फायदा भी नहीं था फॉर्म फिल अप करके. So we did not do the form. So yeah, I mean it was very much evident. तो उसके बाद we decided कि we'll go for the मुंबई वाला because it's also equally good, like very good actually. So हम तीनों ने फॉर्म्स भरे. तो फॉर्म्स भरने के पहले we did a मतलब छोटा मोटा रिसर्च की फीस वगैरह क्या होती है, एंड गूगल में when you search something in Google जो अफोर्डेबल होता है, जो लाइक प्लीजिंग होता है लोगों के लिए, वही वो दिखाते हैं. तो दे शोड की द फीस इज आई थिंक फॉर 1 year it's 15,000, which was like beyond expectation कि मुंबई जैसे शहर में a college would be this cheap. But on top of that, it's a very good college. But it was not a lie, okay? It was not a lie. 15,000 is there, but it's a different course. It's called non-Xavier's, if I'm not wrong. Non-Xavier's करके वो course होता है, and you have to apply separately for that. And this girl, actually her maternal grandparents live in Mumbai. तो उसकी जो mother है, she is Mumbaikar, so she has a lot of knowledge about Mumbai. तो उसको पता था about this thing. And उसने जब फॉर्म फिल किया उसके पहले शी डिड नॉट इवन मेंशन अबाउट दिस थिंग टू अस कि एक सेपरेट कोर्स होता है, यू हैव टू सर्च फॉर इट, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट डिफरेंटली. शी जस्ट सेड कि आई आल्सो अप्लाई फॉर बीए इको ऑनर्स, बीए इको ऑनर्स ऐसा करके. तो वी वर लाइक कि मतलब वी डू नॉट, मतलब वो थॉट जनरली आता नहीं है कि कोई और भी कोर्स होगा, एक सेम सब्जेक्ट के लिए 2 कोर्स होगा. वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट. फिर मैंने थोड़ा लेट अप्लाई किया था विद दिस कॉलेज बिकॉज आई हैड मेरा CVT चल रही थी उस टाइम पे, एंड मेरा CVT लाइक नियर बाई था जब वो फॉर्म्स के डेट ओपन हुए थे. तो आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट, सो आई सेड टू देम कि मैं थोड़े टाइम बाद में करूँगी, यू गाइज डू. तो वो दोनों ने मिलके किया था, ओके माइंड यू, दोनों ने मिलके कॉल पे दे वर टॉकिंग एंड दे वर फिलिंग द फॉर्म्स एट द सेम टाइम. फिर वो लड़की ने दोनों ने फॉर्म्स फिल किए. उसके बाद सब होने के बाद, सबमिट होने के बाद, शी कॉल्स अप दिस अनदर फ्रेंड, हम लोग के ट्रायल में जो मतलब वो दोनों ने साथ में किया था, तो वो कॉल करती है, रिया उसको कॉल करती है, पूछती है कि कोई तुमने कौन से कोर्स में अप्लाई किया. मुझे वैसे कि बीए कॉनर्स जो नॉर्मल वाला. मुझे वैसे कि नो 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 यू शुड हैव अप्लाइड इन नॉन ज़ेवियर इट्स. एंड शी वाज लाइक आई डिडंट सी बिफोर एंड व्हाट्स द डिफरेंस. तो फिर वो बोलती है कि नॉन ज़ेवियर इट्स लाइक वो वाला कोर्स इज चीपर एंड इट्स ओनली 15,000, बट फॉर द नॉर्मल बीए इको ऑनर्स इट विल बी 85,000 पर ईयर. एंड शी वाज लाइक ब्रो 85 and 15, like just see the difference, just see the difference. So she was like, why didn't you tell me before? You could have, when we were talking about this, you could have told then. Then she was like, oh sorry, I just forgot, I thought you guys know, I thought this, I thought that. And वहाँ पे कोर्स में शो हो ही जाता है. एंड देन उसने उस बात को इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, ठीक है. फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया, मैंने भी सेम वो वाले कोर्स में अप्लाई कर दिया. उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया तो ऊपर अमाउंट आ गया था कि दिस कोर्स इज़ 85,000 पर ईयर. एंड आई वाज लाइक इन शॉक कि अभी गूगल में आई जस्ट डिड दिस रिसर्च एंड आई गॉट टू नो कि इट्स ओनली 15,000, वाई इज इट शोइंग 85,000. तो मैंने रिया को कॉन्टैक्ट नहीं किया था, मैंने दूसरी जो फ्रेंड थी वो मेरे से ज़्यादा क्लोज है, तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया था कि ब्रो वाई इज इट शोइंग 85,000, वी डिस्कस ना इट्स 15. तो इट्स लाइक कि या मेरे में दिख रहा था 85. आई थिंक इट्स लाइक अ मिस्टेक हो सकता है. तो मैंने भी अप्लाई कर दिया. एंड बाद में व्हेन द रिजल्ट्स वेर आउट, मतलब सिलेक्शन के रिजल्ट्स, वी थ्री डिड नॉट गेट बिकॉज इस कॉलेज में 50% माइनॉरिटी के होता है, एंड आर परसेंटेज इज लाइक द लास्ट परसेंटेज जो जनरल वाला सीट में जो लास्ट परसेंटेज वॉज आई थिंक 97.8%. आई गॉट 95.6, रिया गॉट 97.2 एंड दिस अदर फ्रेंड गॉट 94.8. तो वी वर नॉट, we would not have gotten that. तो हमको तो नहीं मिला. एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि अच्छा है, मतलब आई स्टार्टेड द कॉन्वो कि अच्छा है वहाँ नहीं मिला, एंड आई डोंट वांट टू अप्लाई बिकॉज इतना ज़्यादा महंगा है. लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी 85,000. नाउ शी स्टार्टेड कि आई शुड हैव लाइक मतलब आई थॉट यू शुड हैव, लाइक तुमको पता होना चाहिए था अबाउट दिस नॉन ज़ेवियर थिंग. एंड देन आई वाज लाइक कि ब्रो तुमको अगर पता था, यू शुड हैव सेड एटलीस्ट वंस. इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग. 70
70,000 का difference is like a very big thing per year, and there is no such difference in the courses. Only I think थोड़ा जो नॉन जेवियर वाला है, it's like more theoretical, like थोड़ा theory type का चीज़ें ज़्यादा है, and this is like a bit more practical, like data वगैरह handling वगैरह ज़्यादा होता है, statistical ज़्यादा होता है. So I was like कि इतना difference भी नहीं है, and you should have told us if you know about it. Then she was like कि no, I thought you guys will know, अब तुम लोग जब apply करोगे तुमको दिख ही जाएगा. I was like no, नहीं दिखता है, because when you search for the, like if you type there the search button economics, they will only show BA economics on it, they will not show any other course. You have to type specifically the entire course's name, non Xavier, it's ऐसा ऐसा करके जो पूरा कोर्स का नाम है. And then I said this thing to her कि bro, I did search, I had to search for economics क्योंकि इतना सारा वैसे ढूंढना is not possible, so I searched economics and they only showed BA economics honors with statistics and with other subjects. And then she was like कि oh really, in my case तो it showed. I was like oh, तुम्हारा शायद वेबसाइट ही अलग है. फिर I realized कि like if someone can play with your education this way, I don't think कि मतलब they will never betray you over something like silly, because this is not silly, this is something related to someone's education. And अगर तुम इसके साथ भी खेल सकते हो, then I think तुम किसी के साथ भी खेल सकते हो. And that was the point I thought कि भाई this is not the kind of friendship I want in my life, because मतलब see, when we know something so informative, so important, immediately हम अपने फ्रेंड्स को कॉल अप करते हैं. अगर हमको पता है कि वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक वेरी इंस्टेंट कि ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक हो जाता है, उनको भी बताना, फॉरवर्ड कर देते. And I don't know how she did not even get that instinct कि मेरे को बताना है उनको, when you know कि we are also doing the same thing as you. So yeah, I mean, so all of these together, I decided कि I need to break this friendship. I was so done, and I broke up, and now it's done. I feel so light. Like that day when she walked out of that cafe, we literally did this. I mean, it's funny, but like we were so like ऐसा लग रहा था यहाँ पे किसी ने गला पकड़ के रखा है. That like until she left the place, we were not able to talk properly. We were like, मैं तो पूरी चुप थी. I was completely I just ate. I just texted in the group sometimes when I was feeling too much, and I mean, I don't know, like, so I just want you guys to be very, very careful of such pick me people, because being pick me is okay, but if this is the level, then I don't know. Well, being pick me is not okay, but like this, I have seen pick me people, like I have seen who changes the complete attitude in front of guys, but this was epic, man. I mean, epic. So this was like the third friendship breakup that I had. Like, इससे पहले दो हुआ था, but they were kind of okay. I mean, comparatively to this, but this was like the craziest of all. And if you want to know the rest too as well, I mean, I love spilling tea, okay? I love yapping. So yeah, this page is all about that. I mean, this channel is all about that. So yeah, you want to know that stories as well, then let me know. And also, if you want to see any other videos in this channel, then let me know in the comments. Okay, bye. And don't forget to hit the subscribe button.